Hello. Yes, sir. That's come on, Chelsea. Yes, sir. Should we begin? Yes, sir. Okay. So open your books. All the children, please open your books. See lesson number 2. Book. You have to open the book. Behive. Behive. And see page number 21. See page number 21. नेटवर्क नहीं मिल रहा सही से उधर नेटवर्क नहीं मिल रहा Page number 21. अपने नहीं मिल रहा ना आवाज कहाँ है See book Behive and page number 21 Behive book. Yeah, Chelsea. Yes, sir. Chelsea. Now start reading the lesson. Okay, sir. See page number 21. Start reading. Sir, वो First तो you read and then I will allow some. सर वो तो पार्ट 2 है, पार्ट 1 से करना है कि पार्ट 2 से? क्लियर आवाज नहीं आ रही बेटे आपकी. सर पार्ट 1 से करना है रीडिंग की पार्ट 2 से? नहीं, पार्ट 1 कल हो गया. We have completed part 1 yesterday. Okay, Today sir. it is part 2. Part 2, The Shehnai of Bismillah Khan. So Before see you here, read. this is. Yes, continue. Do you know these people? What instruments do they play? Think See of here, the there are certain timeline. pictures. Yes, wait. There are Yes, certain sir. pictures, children. See, there are certain pictures with musical instrument. ये उन लोगों के चित्र हैं जो अपनी अपने वाद्य को बजा रहे हैं. अब इनको आपको सबको पहचानना है. जैसे पहले हरिप्रसाद चौरसिया उनके आपको पता है बांसुरी के साथ हैं. ऐसे ही आपको सबके नाम पहचानना है. और लास्ट में देखो, लास्ट वाला जो चित्र बना हुआ है ना, वो बिस्मिल्लाह खान का है. Bismillah ठीक है, Khan. चलिए आगे Okay. पढ़िए. थिंक अबाउट से, थिंक ऑफ द. Think of the Shehnai, and the first thing you will probably imagine is the wedding or a similar occasion or functions. The next See would here, probably but जब whenever full stop comes, you have to stop. Okay? जब आपको full stop आ जाए रुकना है. देखिए, you think about the shehnai. Shehnai is a musical instrument which is played on the auspicious occasions of wedding or such similar functions. Next. the next would probably to instead Bismillah Khan, the Shehnai maestro playing these instruments. So, who is the maestro? Maestro means the experts in that in the playing of shehnai. Who is the expert of shehnai? Bismillah Khan Sahab was the expert, was the maestro of this shehnai. Yes. Imperial Ronzeb Aurangzeb. Aurangzeb band them playing of a musical instrument called pungi in the royal residence, for it had a shrill, unpleasant sound. Shrill, unpleasant sound. औरंगजेब जो थे ना, द एम्परर राजा जो था औरंगजेब, ठीक है ना, मुगलों का राजा था एक औरंगजेब. उसने अपने राज्य में ये पुंगी को बैन करके रखा हुआ था, बैन किया था, यानी उस पर प्रतिबंध लगाया हुआ था. क्यों लगाया हुआ था? क्योंकि पुंगी की आवाज बड़ी श्रील थी. श्रील कहती कर्कश आवाज को. नेक्स्ट. Pungi become the Geranic name for जेनरिक नेम. पुंगी जो थी ना, उसको जो रीडेट कहते हैं, होल वगैरह होना, तो नॉइस मेकिंग वाली एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में जाना जाता था. नेक्स्ट. Few they thought that it would one day be revived. लेकिन सब कुछ लोग सोचते थे कि कुछ दिनों बाद ये पुंगी जो है, इसको बहुत ही ढंग से, अच्छे ढंग से रिवाइव करके नए इंस्ट्रूमेंट में बदल दिया जाएगा.
a barber of a family of professional musicians who had access to the royal palace decided to improve the tonal quality of the pungi. अब औरंगजेब के शासनकाल में एक नाई था, जो नाई को राजमहल में भी आना जाना था। उसने जो है ना पुंगी को बेहतरीन करने का प्रयास किया। He chose a pipe with a natural hollow stem that was longer and broader than the pungi and make 7 holes on the body of the pipe. अब क्या हुआ, उसने क्या किया, उस नाई ने एक ऐसा लकड़ी ली जिसमें होलो थी, अंदर से खाली थी, एम्प्टी थी, उसको लिया और उसमें साथ साथ आप अपने माइक बंद कर लीजिए, माइक बंद कर लीजिए, सब लोग अपने माइक बंद कर लिए चेल्सी को छोड़ के। चलिए, तो उसने नाई ने पाइप को चुना जिसमें होल थे, खाली था, वो एम्प्टी थी होल, और उसमें होल थे, उसी को उसने जो है ना शहनाई बनाने के काम में लिया। आगे चलते हैं। Fanny played on it, closing and opening some of these holes. Soft and melodious sound were produced. देखिए, जो उसने क्या किया कि वो जो होल थे उसमें 7, उसमें कभी किसी को दबाता, कभी किसी को बंद करता, कभी किसी को खोलता, तो उससे एक मधुर संगीत की ध्वनि निकलना शुरू हुई। नेक्स्ट। He played the instrument before royalty and everyone was impressed. यानी उसने राजा के महल में उसको सुनाया, उसको गाया, बजाया उस यंत्र को, लेकिन सारे लोग उससे प्रभावित हो गए बजाने के बाद। ये नया यंत्र जो था पुंगी का, जो इम्प्रोवाइज्ड वर्जन था ना पुंगी का, जो शहनाई, ये लोगों को पसंद आया। आगे देखते हैं। The instrument, so different from the pungi, had to be given a new name. जब जो ये पुंगी से अलग हटके था, इसलिए इसको नया नाम भी देना था। As the story goes, since it was first played in the Shah's chambers and was played by a naib barber, the Wow. instrument was named the Shehnai. अब आपको देखो शहनाई का शहनाई नाम कैसे पड़ा। हाउ शहनाई वॉज नेम्ड एज शहनाई बिकॉज इट वॉज फर्स्ट प्लेड इन द शाह चैम्बर। शाह कहते हैं किंग को, कि इन द king's chamber it was played first time in the king's chamber by a nai, by a barber. That's why it has been named as shehnai. Next. Second, the pungi of the Shehnai began to be considered auspicious. ऑस्पिशियस मीन्स जो शहनाई थी ना उसको धार्मिक कार्यों में बजाने की मान्यता वहां से शुरू हो गई। इट वॉज प्लेड इन द ऑस्पिशियस ओकेजन्स लाइक मैरिजेस, लाइक पूजास एंड लाइक दैट। यस। And for this reason, it is still played in temples and is an indispensable component of any North India wedding. देखिए क्या होता है नॉर्थ इंडिया वेडिंग में, ये इंडिस्पेंसेबल, यानी आप देख सकते हैं यहाँ पे विदाउट विच ए पीस ऑफ वर्क कैन नॉट बी डन, यानी एक अभिन्न हिस्सा शादियों का बन गया। वहाँ पर शादियों में इसको बजाया जाना अति आवश्यक हो गया था, यानी अब जरूरी हुआ था। वहीं की एक मान्यता थी कि शादियों में ये बजना ही है शहनाई। नेक्स्ट। In the past, the Shehnai was part of the Nobat or traditional ensemble of nine instruments found at royal court. अब ये नौबत जो थे ना, नौबत 9 प्रकार के इंस्ट्रूमेंट इसमें शामिल किया जाने लगा पुंगी, इसको शहनाई को। Till recently, it was used only in temples and weddings. शुरुआत में ये केवल मंदिर में और शादियों में ही बजाया जाता था शहनाई को। The credit for beginning this instrument onto the classic stage goes to Ustad Bismillah Khan. उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, है ना। तो यानी कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को ही इसको क्लासिकल स्टेज में ले जाने का क्रेडिट किसको मिला है? बिस्मिल्लाह खान को। उनको क्लासिकल तरीके से उसको बजाया था बिस्मिल्लाह खान साहब ने। नेक्स्ट। As a 5-year-old, Bismillah Khan played gilli danda near a pond in the ancient state of Dumrao in Bihar.
बिहार में एक जगह है दुमराव, वहां पे 5 साल की उम्र में बिस्मिल्लाह खान गुल्ली डंडा खेला करते थे, एक नदी के, एक पॉन्ड के किनारे, एक तालाब के किनारे। He would regularly go to the nearby Bihari Ji temple to sing the Bhojpuri Cheta, and the end of which he would learn earn a big laddu weighing 1.25 kg, a prize अब given by देखिए, the local Maharaj. अब देखिए, जब 5 साल की उम्र में बिस्मिल्लाह खान ने क्या किया था, एक बिहारी जी के मंदिर में जाते थे और वहां पे एक लोकल भोजपुरी गाना होता था जिसको चेत्ता कहते थे, चेत्ता कहते थे, वो वहां पे मंदिर में वो गाया करते थे। और जब गाया करते थे, वहां जो लोकल वहां के महाराजा थे, वो एक 1.25 किलोग्राम का एक लड्डू उनको इनाम के रूप में देते थे। किनको? बिस्मिल्लाह खान को। This happened 80 years ago, and the little boy has traveled far to earn the highest civilian award in India, the Bharat Ratna. अब देखो, वही बच्चा जिसको बिहारी जी के टेम्पल में भोजपुरी चेत्या गाने के लिए 1.25 किलो का लड्डू मिलता था, वही बच्चा जब बड़ा हुआ, बिस्मिल्लाह खान जब बड़े हुए, तो उनको सबसे हाईएस्ट अवार्ड हिंदुस्तान का जो होता है सिविलियन अवार्ड, भारत रत्न, उनकी उसकी प्राप्ति हुई। यानी कहाँ कहाँ तो एक छोटा सा इनाम 1.25 किलो का लड्डू, और कहाँ भारत रत्न सबसे सर्वोच्च इनाम वो उनको मिला। अच्छा, अब एक काम करते हैं, कोई कोई बेटा 1 मिनट जल्द से, आपने पढ़ लिया बहुत देर तक, और कोई दूसरा बच्चा है अभी जो पढ़ेगा, और दूसरा ट्राई करें? एनीबडी, समवन एल्स वुड ट्राई? इज देयर एनीबडी हु वुड ट्राई? कोई और बच्चा तैयार करे, बोले। यस सर। हाँ, कौन है बेटे? नाम बोलो अपना, टेल मी योर नेम। सर जानवी अग्रवाल। ओके ओके, यू रीड आउट। ओके, चेल्सी अपना माइक आप बंद कर लें और इनको पढ़ने दें अब। Born हाँ, on पेरा 20 March. नहीं, पेरा नहीं, पेरा नंबर 4। Yes, sir. यस। Born on 21 March 1916, Bismillah belongs to a well-known family or musicians from Bihar. अब देखो, बिस्मिल्लाह खान जो थे ना, उनकी जो खानदानी जो म्यूजिशियन थे, उन्हीं में उनका जन्म हुआ था। यानी उनके खानदान में म्यूजिक एक परंपरा के रूप में बजाया जाता था, और वो पैदा हुए थे 21 मार्च 1916 को। His grandfather, Rasul Baksh Khan, was the Shehnai Nawaz of the Bhojpur King's court. अब देखो, उनके जो दादाजी थे वो रसूल बख्श खान, वो शहनाई नवाज थे, भोजपुर राजा के दरबार में वो शहनाई नवाज थे। His father, Paigambar Baksh, was other paternal ancestors were also great Shehnai players. यानी उनके जो माता जी के परिवार में, उसके मदर के खानदान में भी वो भी ग्रेट प्लेयर हुआ करते थे शहनाई के। The young boy took to music early in life. At the age of 10, when his mother took him to his maternal uncle's house in Banaras, now Varanasi, Bismillah was fascinated watching his uncles practice the Shehnai. अब देखो, बिस्मिल्लाह खान के जो मामा जी थे, अब मामा जी कहीं यहाँ पे मैटरनल अंकल मामा जी कहते हैं, तो उनके वहाँ जब गांव में गए वहाँ पर, तो वो अपने मामा जी को घंटों आश्चर्यचकित होकर के शहनाई बजाते हुए देखते थे। कौन? बिस्मिल्लाह खान। और उनको प्रैक्टिस करते हुए देखते थे, तो उनने भी प्रैक्टिस वहाँ पे सुन करके वहीं से शहनाई की शिक्षा उनको मिली। 1 मिनट अभी रुकते हैं, हम लोग जो बच्चे भी नए ज्वाइन किए हैं वो देख ले, पेज नंबर 23 बिहाइव का, पेज नंबर 23 का पैरा नंबर 5 पढ़ रहे हैं हम लोग, वहां पर आ जाएं, वहीं से देखें। चले बेटा, आगे बढ़िए। Soon, Bismillah started accompanying his uncle Ali Baksh to the Vishnu temple of Banaras, where Baksh was employed to play the Shehnai. अब जहाँ पे उनके मामा जो थे, उनको एक मंदिर में, विष्णु टेम्पल जो बनारस का है, वहाँ पे शहनाई बजाने के लिए नियुक्त किया गया था, तो वो भी वहाँ पे पहुँच जाया करते थे बिस्मिल्लाह खान भी। चलिए। Ali Baksh would play the Shehnai and Bismillah would sit captivated for hours on end. 1 मिनट बेटा, मैं थोड़ा वेट करूँ। हाँ, अली बख्श वुड प्ले द शहनाई एंड बिस्मिल्लाह वुड सिट कैप्टिवेटेड फॉर आवर्स एंड एंड। यानी उनके मामा शहनाई बजाते थे और बिस्मिल्लाह खां मंत्रमुग्ध होकर के घंटों उनको सुनते रहते थे। नेक्स्ट।
Slowly, he started getting lessons in playing the instrument and would sit practicing throughout the day. और फिर उन्होंने अपने मामा से उसके गुरु मंत्र भी लेना शुरू किए कि शहनाई को बजाएं कैसे, और वो घंटों फिर वो भी खुद रियाज करते थे, यानी प्रैक्टिस करते थे। For years to come, the temple of Balaji and Mangal Maiya and the banks of the Ganga become the young apprentice's favorite haunts where he could practice in solitude. अब देखो, सॉलिट्यूड कहते हैं अकेलेपन को, और कोई भी नहीं, सॉलिट्यूड यानी अकेलेपन में वो प्रैक्टिस करते थे। कौन? बिस्मिल्लाह खां। और यानी आने वाले सालों में उन्हें बालाजी और मंगल मैया और गंगा के किनारे, ये दोनों मंदिर है, मंगल मैया का मंदिर और बालाजी का मंदिर, और गंगा के किनारे ये घंटों प्रैक्टिस किया करते थे अकेले में बिस्मिल्लाह खान। नेक्स्ट। The flowing waters of the Ganga inspired him to improvise and invent rags that were earlier considered to be beyond the range of the Shehnai. अब देखो, जो शहनाई, जो रागें ऐसी थी, कुछ रागें ऐसी थी जो शहनाई पे बजाना बहुत दूर की बात थी। उनने गंगा के बहते हुए पानी को देखते हुए उन रागों को भी शहनाई के राग में मिला करके वहाँ पे डेवलप कर लिया, यानी शहनाई पर वो राग निकालना शुरू कर दिया, यानी वो नई नई इम्प्रोवाइज करने लगे। नेक्स्ट। At the age of 14, Bismillah accompanied his uncle to the Allahabad Music Conference. अब इलाहाबाद के म्यूजिक के कॉन्फ्रेंस हुआ था, तो 14 साल की उम्र में बिस्मिल्लाह खान ने अपने अंकल के साथ में वहाँ पे ज्वाइन किया उस म्यूजिकल कॉन्फ्रेंस को। At the end of his recital, Ustad Fayyaz Khan patted the young boy's back and said, "Work hard and you shall make it." देखो, एक फैयाज खान थे उस समय के, उस्ताद फैयाज खान थे, बहुत फेमस। उनने जब उनको बिस्मिल्लाह खान को शहनाई बजाते सुना तो उन्हें पीठ को थपथपाया और बोला कि एक दिन तुम दुनिया में नाम करोगे। With the opening of the All India Radio in Lucknow in 1938 came Bismillah's big break. अब देखो, जब 1938 में क्या हुआ कि आज़ादी से पहले की बात है, जब लखनऊ में रेडियो स्टेशन बना पहला नया, तो इनको वहाँ पे लखनऊ में रेडियो स्टेशन पर गाने का मौका मिला, और वहाँ वो बजाने का मौका मिला शहनाई को, तो वहाँ से उनको पहला ब्रेक मिला। वो फिर नियमित रूप से वहाँ पे रेडियो स्टेशन पे शहनाई को बजाते थे। नेक्स्ट। He soon became an often heard Shehnai player on radio. रेडियो पर ज़्यादातर शहनाई वादक के रूप में उनको लोग सुना करते थे। When India gained independence on 15 August 1947, Bismillah Khan became the first Indian to greet the nation with his Shehnai. अब जब 1947 में 15 अगस्त 1947 में जब भारत देश आज़ाद हुआ, तो लाल किले के प्राचीर से शहनाई का इनने वादन किया था बिस्मिल्लाह खान ने। नेक्स्ट। He poured his heart out into Rag Kafi from the Red Fort to an audience which included Mahatma Gandhi and Pandit Jawaharlal Nehru, who later gave his famous Tryst with Destiny speech. अब देखो, जो जवाहरलाल नेहरू थे हमारे प्रथम प्रधानमंत्री, उनने जब आज़ादी के समय एक ऐतिहासिक भाषण दिया जिसको बोला था ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, तो इस भाषण से पहले उनने अपना राग कैफी में अपनी उसको शहनाई को बजा के पूरी दुनिया, पूरे हिंदुस्तान को सुनाया था लाल किले से। नेक्स्ट। Bismillah Khan has given many memorable performances both in India and abroad. यानी बिस्मिल्लाह खान ने देश में और विदेश में बहुत ही यादगार परफॉर्मेंस दिए हैं। His first trip abroad was to Afghanistan, where King Zahir Shah was so taken in by the maestro that he gave him priceless Persian carpets and other souvenirs. बिस्मिल्लाह खान विदेशों में घूमे थे। जब वो अफगानिस्तान गए तो वहाँ के जो किंग ज़हीर शाह थे, उनने उनसे बहुत प्रभावित होकर के बिस्मिल्लाह खान को बहुत एक कारपेट दिया, पर्शियन कारपेट दिया, और बहुत सारी सोवेनियर्स दिए। सोवेनियर्स कहते हैं यादगिरी के वस्तुएं, तो बहुत ही महंगी यादगिरी की वस्तुएं उनने दी शहनाई से उनके शहनाई वादन से प्रभावित होकर के। नेक्स्ट। The king of Afghanistan was not the only one to be fascinated with Bismillah Khan music. केवल वहाँ के अफगानिस्तान के राजा ही नहीं जो उससे प्रभावित हुए थे, दुनिया में और भी लोग थे जो उनसे प्रभावित हुए थे, बड़े लोग उनकी शहनाई वादन से। Film director Vijay Bhatt
was so impressed after hearing Bismillah's play at a festival that he named a film after the instrument called Gunj Uthi Shehnai. अब जो उनसे एक विजय भट्ट भी फिल्म बनाने वाले थे, फिल्म बनाने वाले एक थे, डायरेक्टर थे, उन वो भी प्रभावित हुए थे बिस्मिल्लाह खान से। उनने उनके शहनाई वादन को देखते हुए एक फिल्म का नाम, जिसका नाम था गूंज उठी शहनाई, बना दी थी फिल्म। The film was a hit and one of Bismillah Khan's composition, Dil Ka Khilona Hai Toot Gaya, turned out to be a nationwide chart buster. यानी नेशन, पूरी हिंदुस्तान में चार्ल्स बस्टर कहते हैं जो प्रसिद्ध हो जाए, लोगों की जुबान पर आ जाए। दिल का खिलौना है टूट गया, ये गाना था जो उस फिल्म का था, और उस फिल्म में गूंज उठी शहनाई का गाना था ये, और इसको पूरे हिंदुस्तान में पसंद किया गया। Despite this huge success in the celluloid world, Bismillah Khan's ventures in film music were limited to two: Vijay Bhatt's Gunj Uthi Shehnai and Vikram Srinivas' Kannada venture Sanadhi Apanna. यानी देखो, एक कन्नड़ फिल्म थी सनाधि अपन्ना। एक तो इनने केवल अपनी जीवन में, बिस्मिल्लाह खान ने सिर्फ 2 ही फिल्म की थी, एक थी गूंज उठी शहनाई हिंदी वाली फिल्म, और एक कन्नड़ा वाली फिल्म थी सनाधि अपन्ना। इसी 2 फिल्मों में ही काम किया था उनने, बाकी और किसी चीज़ में अपनी शहनाई को किसी भी फिल्म में उनने नहीं बनाया था। क्यों नहीं बनाया था, उसका कारण आगे देने वाला है, वो देखें। I just can't come to terms with the artificiality and glamour of the film world. He क्योंकि says देखो, with अब पूरे जोर देकर के उनने ये बताया बिस्मिल्लाह खान ने कि ये जो फिल्मों की दुनिया है ये आर्टिफिशियलिटी है, ये नकली दुनिया है। यानी इस नकली दुनिया में मैं अपने संगीत को नहीं दूंगा। मैं ऐसे जो शादी होगी, ब्याह होगा, पर कोई प्रोग्राम्स होंगे, कोई राष्ट्रीय कार्यक्रम होंगे, दुनिया में कोई परफॉर्मेंस होगा म्यूज़िक का, मैं वही दूंगा, वहाँ इसका महत्व है। बाकी नकली आर्टिफिशियल फिल्मों की दुनिया में मैं अपने म्यूज़िक को नहीं दूंगा। नेक्स्ट। awards and recognition came thick and fast. अब उनके बाद उनको जो उनकी पहचान और उनको इनामात बहुत जल्दी थिक एंड फास्ट में जल्दी मिलने लगे। Bismillah Khan became the first Indian to be invited to perform at the prestigious Lincoln Center Hall in the United States of America. यानी अमेरिका के लिंकन हॉल में भी उनको शहनाई बजाने का मौका मिला। पहली बार किसी को मिला मौका, और ये पहले व्यक्ति कौन थे वहाँ पे, अपना पहले हिंदुस्तानी थे जिनको वहाँ मौका मिला था अपने संगीत को प्रस्तुत करने का। He also took part in the World Exposition in Montreal, in the Cannes Art Festival and in the Osaka Trade Fair. यानी ओसाका ट्रेड फेयर जापान का है, वहाँ पे इनको मौका मिला। मॉन्ट्रियल में, केन्स में आर्ट फेस्टिवल में भी इनको मौका मिला अपनी शहनाई को बजाने का। यानी अमेरिका में तो मिला ही पहले, उसके बाद ये 2 जगह और थी जहाँ इनको अपनी शहनाई बजाने का मौका मिला। नेक्स्ट। So well known did he become internationally that an auditorium in Tehran was named after him, Tehar Mausique Ustad Bismillah Khan. चलिए, तो इंटरनेशनली उसके बाद उनकी पूरी अंतर्राष्ट्रीय रूप से इनकी पहचान बन गई। और एक तेहरान में एक ऑडिटोरियम था जिसका नाम ही इनके नाम पर, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के नाम पे बनाया गया। National awards like the Padma Shri, the Padma Bhushan and the Padma Vibhushan were conferred on him. यानी देखिए, आप 3 इनाम के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। एक पद्मश्री इनको मिला, पद्म भूषण मिला और पद्म विभूषण मिला। ये तीनों अवार्ड इनको मिले। In 2001, Ustad Bismillah Khan was awarded India's highest civilian award, the Bharat Ratna, with the coveted award resting on his chest and his eyes glinting with rare happiness. He said, "All I would like to say is, teach your children music. This is Hindustan's richest tradition. Even the West is now coming to learn our music." अब जब क्या हुआ, 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को अवार्ड मिला। कौन सा वाला? हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड मिला, और वो था भारत रत्न। और जब भारत रत्न मिला उनको, तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने क्या बोला सारे बच्चों को, बोला कि बच्चों को क्या कहना चाहिए, इनको संगीत सिखाना चाहिए, क्योंकि विदेशी लोग हमारे संगीत को आगे सीख रहे हैं, तो हमारे देश के लोग तो संगीत को सीखना चाहिए, ऐसे बच्चों को ये संगीत सिखाना चाहिए। नेक्स्ट।
In spite of having travelled all over the world, Khan Sahib, as he fondly called, is extremely fond of Banaras and Dumraon, and they remain for him the most wonderful towns of the world. अब देखो, पूरी दुनिया भर में बिस्मिल्लाह खां घूमे थे, लेकिन उनको दो जगह जो बचपन से बड़े हुए थे जहाँ पे, कौन सी, एक तो बनारस और दूसरा डमराव, वो बड़ी पसंद थी। नेक्स्ट। A student of his once wanted him to head a Shehnai school in the USA, and अब the ये, student हाँ, promised to recreate the atmosphere of Banaras by replicating the temples there. अब क्या हुआ, बनारस यूएसए में इनका एक शागिर्द था, शागिर्द कहते हैं डिसिपल को, डिसाइपल मतलब शिष्य को, एक शिष्य था, उसने बोला कि आप ऐसा करो, अमेरिका में मैं आपको मंदिर, जो बनारस के मंदिर हैं वैसे ही मंदिर मैं यहाँ बनवा देता हूँ, ताकि आपको वैसा ही माहौल मिलेगा, और यहाँ पे भी शहनाई का स्कूल खोल दीजिए। तब आगे बिस्मिल्लाह खान क्या कहते हैं, देखिए इसके जवाब में स्टूडेंट को क्या कहते हैं अपने। But Khan Sahib asked him if he would be able to transport River Ganga as well. उनने कहा कि देखो, आप मंदिर तो बनारस के वहाँ अमेरिका में ले जा सकते हो, लेकिन क्या रिवर गंगा को भी आप अमेरिका में ले जा सकते हो क्या? अगर नहीं ले जा सकते तो फिर मेरा वहाँ पे स्कूल खोलना या संगीत सिखाना संभव नहीं है। Later, he is remembered to have said, "That is why whenever I am in a foreign country, I keep yearning." यर्निंग टू सी हिंदुस्तान। तो उनने कहा जब भी मैं, हाँ, सर जब आगे भी नहीं मैं था। यर्निंग टू सी हिंदुस्तान। चलिए, तो उनने बोला जब भी मैं विदेश में होता हूँ तो मैं हिंदुस्तान को देखने के लिए लालायित होता हूँ, मुझे हिंदुस्तान की बड़ी याद आती है। नेक्स्ट। Ustad Bismillah Khan's life is a perfect example हाँ, for अभी the रुको रुको, कहाँ से पढ़ रहे हो? अच्छा, ये पूरा नहीं है तुम्हारे इसमें, No, sir. वाइल इन मुंबई। चलो मैं पढ़ देता हूँ फिर, रुको। वाइल इन मुंबई आई थिंक ऑफ ओनली बनारस एंड द होली गंगा। जब मैं बॉम्बे में होता हूँ तो मैं केवल बनारस और पवित्र गंगा के बारे में ही सोचता हूँ। एंड वाइल इन बनारस, और जब मैं बनारस पहुंच जाता हूँ, आई मिस द यूनिक मंथा ऑफ डुमराव, और मैं डमराव की जगह को नहीं भूलता हूँ अगर मैं बनारस में चला जाता हूँ तो। चलिए अब पढ़िए आगे 13 वाला। Ustad Bismillah Khan's life is a perfect example of the rich cultural heritage of India, one that effortlessly accept that a devout Muslim like him can very naturally play the Shehnai every morning at the Kashi Vishwanath temple. देखो, अब उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की लाइफ जो है ना, एक परफेक्ट एग्जांपल है किस चीज़ का, रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, यानी भारत की कल्चर को उनके रूप में भी जाना जा सकता है, क्योंकि उनने मंदिरों में अच्छे अवसरों पे सारा ये बजाया है अपनी शहनाई को, तो उनको हिंदुस्तान के कल्चर के रूप में जाना जाता है। और यानी जाति से मुस्लिम थे, लेकिन उसके बावजूद भी उनने हिंदू संस्कृति में पूरा ध्यान रखते हुए वहाँ पे अपने संगीत को न्योछावर किया। यानी देखो, काशी विश्वनाथ टेम्पल में बजाते रहे, सब हर सुबह काशी विश्वनाथ मंदिर में अपनी शहनाई को वो बजाते थे। ये ब्रैकेट में पढ़ लीजिए नीचे का। Shekhar Gupta, when partition happened, didn't you and your family think of moving to Pakistan? नहीं, ये जो नीचे लिखा है ना, नीचे उस्ताद बिस्मिल्लाह खां पास्ड अवे, नीचे। सर वो भी नहीं है बुक में। वो भी नहीं है तुम्हारी बुक में? अरे चलो कोई बात नहीं बेटा, अच्छी बात है। अभी एक बताए, अभी लगभग अपने कितने बच्चे यहाँ ऑनलाइन थे, जरा देखिए, एक मिनट में गिन लेता हूँ, आपको अभी छोड़ना नहीं। हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बच्चे थे बेटा। Yes, sir. चलिए, तो ये ज्यादा क्यों नहीं आते बेटा, सबको बोलो ना, क्लास 9 से 9:30 बजे होती है। सर अभी सारा आ गए थे, फिर से चले गए। क्यों बेटा, अच्छी बात नहीं, जब पढ़ रहे हैं आप तो पढ़ो, क्योंकि इसको मौका नहीं मिलना है आगे दूसरा। सर रेगुलर होगा तो आ जाएंगे धीरे धीरे। हाँ, रेगुलर तो था, देखो